Good morning students, how are you? I hope you all fit and fine. Welcome to the 7th standard. Myself Ramadip Kaur and I will teach you physics. But before starting the work, we take pledge. I Ramadip Kaur commit to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in a public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's start with physics. This is your book for 7th standard, physics for middle school. Now let's start with your first chapter. That is measurements. Your first chapter for physics is measurements. Now first of all, what is measurement? Determination of the size or magnitude or something is known as measurements. कि किसी चीज़ को उसके साइज़ को मेज़र करना है या फिर उसके साइज़ को फाइंड आउट करना है या फिर मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट. वी आर फैमिली विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट्स इन आवर डे टू डे लाइफ. हमारी डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट्स कितने इम्पॉर्टेंट है ये हमें ऑलरेडी पता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6 अबाउट द SI यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर. द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर विच इज डोनेटेड बाय स्मॉल m. ऑफ मास इज किलोग्राम विच इज डोनेटेड बाय kg. ऑफ टाइम is second which is denoted by s, small s, and of temperature is Kelvin which is denoted by capital K. However, the temperature is also expressed in degrees Celsius, here denoted by degrees Celsius. You also know about the multiples and submultiples of units of measurements. In this chapter, we learn about the measurements of area, volume, mass and weight. We will also study density and its determination. Our first topic is measurements of area. You know that area is a measure of surface of an object. Area क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कितने सरफेस को कवर कर रहा है, दैट इज मेजरमेंट्स ऑफ इट्स एरिया. कोई ऑब्जेक्ट कितने सरफेस को कवर कर रहा है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का एरिया बोलते हैं. Some bodies have regular geometrical shapes and some other have irregular shapes. कुछ geometrical shapes की regular shape होती है, as shown here, triangle, rectangle, circle. These bodies have regular shapes, but some other have irregular shape, just like table, heart, leaf, shown in this figure. Now to find the area of regular shapes, first हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको डायरेक्टली अप्लाई करके हम रेगुलर सरफेस का एरिया फाइंड कर सकते हैं. बट फॉर इरेगुलर शेप्स वी डू सम अनदर मेजरमेंट्स विच वी लर्न इन दिस टॉपिक. फर्स्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर सरफेसेस, पहले हमें रेगुलर सरफेस के एरिया को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूलाज हैं उनको देखना होगा. You may calculate the area of these regular geometrical shapes by applying some mathematical formulas. For example, area of triangle half into height into base. Area of triangle का फॉर्मूला क्या है? half into height into base. Now area of rectangle length into breadth. Length is denoted by L and breadth is denoted by B. Now the area of rectangle equals to L into B. Area of circle equal to pi into radius square. That means pi r square. R is the radius of circle, so area of circle equal to pi r square. Now to find the area of irregular surfaces. irregular surface के एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं?
एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दी फॉलोइंग एक्टिविटी। हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसको हम अप्लाई करके इरेगुलर सरफेस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्टिविटी। हमारे एम क्या है एक्टिविटी का? टू मेजर द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स सच एज अ लीफ। लीफ का एरिया फाइंड करना है हमें, जो कि एक इरेगुलर शेप है। हेयर मटेरियल रिक्वायर्ड कौन से होंगे? अ लीफ, अ ग्राफ पेपर, अ पेंसिल। हमें एक लीफ चाहिए, इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। प्रोसीजर क्या है? प्लेस द लीफ ऑन द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द बाउंड्रीज लाइन ऑफ द लीफ ऑन द ग्राफ पेपर। हमें एक ग्राफ पेपर लेना है एज शोन हियर, उस पर हमें लीफ रख के उसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है एज गिवन हियर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, एक लीफ को आपने एक ग्राफ पेपर पे रखना है और उसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है एज शोन हियर। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर इनसाइड द बाउंड्री। पहले आपको देखना है कि जो बाउंड्री हमने लीफ की ड्रा की है उसके अंदर कितने कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। आफ्टर दैट काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स विच आर हाफ और मोर देन हाफ इनसाइड द बाउंड्री। पहले तो कंप्लीट सर्कल को स्क्वायर्स को आपने फाइंड आउट कर दिया। आफ्टर दैट ये देखना है कि इसके अंदर कितने हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स हैं। यहाँ पे एज शोन हियर, दीज आर हाफ, दिस इज मोर देन हाफ, इनको काउंट कर लेना है। नाउ उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ लीफ इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर प्लस हाफ नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर्स की जो काउंटिंग है वो कितनी है? 21। सो हेयर वी पुट इन द फॉर्मूला 21 इंटू 1 प्लस हाफ नंबर ऑफ हाफ। इसमें कितने हाफ हैं और मोर देन हाफ है, दोनों का प्लस करके उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो विद नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। बाय दिस वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस सच एज लीफ। लीफ का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ पेपर। इन्फेरेंस क्या है? द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग ग्राफ पेपर। इससे क्या पता चलता है कि हम इरेगुलर शेप का जो एरिया है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय यूजिंग द ग्राफ पेपर। नाउ हियर द चेक पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक विच वी ऑलरेडी हैव स्टडीड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर एंड ब्रेथ इज 35 मीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया का फॉर्मूला क्या है? दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एंड put this value for length and breadth and you can find the area of rectangular field. Now similarly for this, यहाँ पे आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल गिवन है, लेंथ गिवन है, आपको ब्रेथ फाइंड करना है। सिमिलरली फॉर these questions are related to the previous topic measurements of area. आप do it by yourself. If you have any problem regarding these questions, we already discussed these questions in your written assignment. Now next topic is measurements of volume. First of all, what is volume? The space occupied by an object, it's called its volume. कि कितनी स्पेस एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसको उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जस्ट लाइक a brick occupies more space than a marble wall. जो एक ब्रिक है वो ज़्यादा स्पेस कवर करती है एज कम्पेयर टू अ मार्बल वॉल। ऑल्सो अ वॉलीबॉल ऑक्यूपाइज मोर देन अ क्रिकेट बॉल। जो एक वॉलीबॉल होती है वो ज़्यादा स्पेस कवर करती है एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज़ मोर देन दैट ऑफ मार्बल। अगर ब्रिक ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एज़ कम्पेयर टू अ मार्बल बॉल तो ऑब्वियस है उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिमिलरली फॉर दी वॉलीबॉल एंड क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। नाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट्स
क्या होती हैं? इन SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। कौन सी उसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की? क्यूबिक मीटर, एज शोन हेयर। 1 meter into 1 meter into 1 meter equals to 1 into 1 1, and here meter is 3 times, so we write here m cube. This is also written as m cube. Unit of volume is m cube. It is the volume of a cuboid whose each edge is of 1 meter length. हमें एक यहाँ पे एक क्यूबॉइड गिवन है जिसकी हर जो ईच एज है उसकी लेंथ कितनी गिवन है? 1 मीटर। सच अ क्यूबॉइड इज नोन एज अ मीटर क्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे? मीटर क्यूब, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। मीटर क्यूब इज अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 1 मीटर। मीटर क्यूब क्या होता है? एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या हो? इक्वल हो। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ मीटर क्यूब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास इसका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमें कितनी गिवन है? 1 मीटर। ब्रेथ कितनी गिवन है? 1 मीटर। और हाइट कितनी गिवन है? 1 मीटर। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1। मीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू m क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। Among solids, some building materials such as gravel, sand or salt by volume. जो building materials हैं, gravel, sand, ये सबको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सोल्ड करते हैं। देयर वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूब मीटर। जो इनका वॉल्यूम है वो किस में मेजर करते हैं ना? क्यूबिक मीटर। द कैपेसिटी इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। इनकी जो कैपेसिटी है वो किसके थ्रू मेजर करते हैं? क्यूबिक मीटर। द कैपेसिटी ऑफ कैरेज सच एज रेलवे वैगन्स और अ ट्रक इज ऑल्सो मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। जो बाकी कैरेज होते हैं, ठीक है, कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, उनकी कैपेसिटी को भी कैसे मेज़र करते हैं? जस्ट लाइक रेलवे वैगन्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, उनको भी हम क्यूबिक मीटर्स में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट्स ऑफ रेगुलर। इनकी भी जो वॉल्यूम है वो भी 2 तरह का होगा, मेजरमेंट्स ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जो मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर सॉलिड्स होंगी, जस्ट लाइक सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इनको हम कैसे मेज़र करेंगे? उनके लिए हमें ऑलरेडी फॉर्मूलाज गिवन है। द बॉडीज इन द शेप ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर आर कॉल्ड रेगुलर सॉलिड। जो इनकी शेप में होंगे, जस्ट लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, उनको हम रेगुलर सॉलिड्स कंसीडर करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ सब बॉडीज कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला। उनके लिए मैथमेटिकल फार्मूलाज ऑलरेडी गिवन है। एज सच आपको सिर्फ लर्न करने हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, साइड क्यूब मीन्स अगर एक साइड है उसको हम ए से डोनेट करें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। लेंथ को डोनेट करते हैं एल से, ब्रेथ को बी से, थिकनेस को एच से। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैसे डोनेट करते हैं? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। पाई को एज इट इज, रेडियस को आर से डोनेट करते हैं, सो हेयर आर, एंड फॉर हाइट को किससे डोनेट करते हैं? एच। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। 1/3 पाई एज इट इज, रेडियस को आर से डोनेट कर दिया, हाइट को एच से। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h. Now for volume of a sphere, 4/3 pi radius cube. 4/3 pi as it is, radius को r से डोनेट कर दिया है, so here we have 4/3 pi r cube which is the volume of sphere formula. Now remaining topics we will discuss in the next lecture. You do all the questions related to this topic and
you learn these formulas. If you have any problem regarding this, we will discuss these points also in your written assignments. So I hope you get all these points. Thank you. Have a nice day.